بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاننے کے لیے مکمل ویڈیو دیکھیے اور چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ یہ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے۔ اللہ کی پہچان اللہ کی نشانیوں سے ہوتی ہے اور یہ قرآن اللہ کی نشانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ بار بار قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو سوچے سمجھے، تم میں سے کون ہے جو غور کرے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی نشانیاں کھلے آسمان تلے اور تمہارے اندر، حتیٰ کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہی حق ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کو سوچ سمجھ کر پڑھنے والوں کے درجات بہت بلند ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر چھوٹی بڑی شے کا بیان ہے۔ آج اس ویڈیو میں آپ جان لیں گے کہ جو کتاب آپ کے گھروں میں رکھی ہے اس میں کتنا بیش قیمتی خزانہ ہے، اور اگر انسان جان لے تو خالق حقیقی کے آگے دل سے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ مختلف دھاتیں جو ہم زمین پر استعمال کرتے ہیں وہ زمین کی پیداوار نہیں ہیں، بلکہ وہ کسی دوسرے پلانٹ سے آئی ہیں، جیسے کہ لوہا جو لاکھوں سال پہلے کسی میٹیور کے ذریعے زمین پر آیا تھا۔ سائنس نے یہ فیکٹ آج ڈسکور کیا ہے، مگر قرآن پاک میں اس کا بیان 1400 سال پہلے کر دیا گیا تھا۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ یہ بات جان کر آپ مزید حیران ہوں گے کہ روزمرہ زندگی میں ہم جو پانی استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس زمین کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ لاکھوں سال پہلے اس زمین پر اتارا گیا تھا۔ سائنس نے آج جیو کیمیکل سٹڈیز کے ذریعے اس بات کا پتہ چلا لیا ہے، مگر قرآن پاک نے یہ بات 1400 سال پہلے انسان کو بتا دی تھی۔ سورہ المومنون آیت نمبر 118 میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ ناظرین، یہ بات آپ بالکل جانتے ہیں کہ انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس انسان کی باڈی کا سب سے کمپلیکیٹڈ اور یونیک پارٹ ہیں۔ کسی ایک انسان کے فنگر پرنٹ دوسرے انسان سے میچ نہیں کرتے۔ یہی فنگر پرنٹس انسان کی آئیڈینٹی کا ایک حصہ ہیں، جس سے کسی بھی انسان کی شناخت بآسانی کی جا سکتی ہے۔ اس بات کا اندازہ سائنس نے کچھ عرصہ پہلے ہی لگایا، مگر اللہ نے یہ بات قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بیان فرما دی تھی۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے، کیوں نہیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کر دیں۔ جہاں کائنات کی ہر مخلوق اپنے خالق کا پتہ دے رہی ہے، وہاں آپ یہ راز جان کر حیران ہو جائیں گے کہ فیمیل سپائڈر جب بچے پیدا کرتی ہے تو میل سپائڈر کو مار دیتی ہے، اور جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو اپنی مدر یعنی فیمیل سپائڈر کو مار دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے کمزور اور برا گھر ہے جہاں فیملی ممبرز ہی ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک میں مکڑی کے نام سے ایک پوری سورہ موجود ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتا ہے، جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ سائنس ایک عرصے سے مانتی چلی آ رہی تھی کہ شاید صرف میل سپائڈرز ہی گھر بلڈ کرتے ہیں، لیکن سائنس نے اس بات کو جان لیا ہے کہ گھر صرف فیمیل سپائڈرز ہی بناتی ہیں۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں گھر بنانے کا ذکر ہے وہاں اس آیت میں فیمیل سپائڈر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور سائنس اس بات کو مان چکی ہے کہ سب سے کمزور اور برا گھر مکڑی کا گھر ہی ہے۔ اسپیس کی بات کریں تو ناسا نے ریسنٹلی ایک ایسا پلانٹ ڈسکور کیا ہے جو 2 سٹارز کو آربٹ کر رہا ہے۔ اس پلانٹ پر ایک نہیں بلکہ 2 سن رائز اور 2 سن سیٹ دیکھے جاتے ہیں۔ اس پلانٹ کا نام سائنس نے کیپلر 16b رکھا ہے۔ اس پلانٹ کی ڈسکوری 2011 میں کی گئی، مگر اس کا بیان قرآن پاک میں 1400 سال پہلے درج کر دیا گیا تھا۔ اس پلانٹ پر جیسا کہ 2 مشرقین اور 2 مغربین دیکھی جا سکتی ہیں، قرآن پاک کی سورہ معارج میں اس کا بیان ہے، تو مجھے تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے رب کی قسم، بے شک ہم ضرور قادر ہیں۔ آگے آنے والی انفارمیشن آپ کو مزید حیرت کی طرف لے جائے گی۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، تاکہ ہمارا آپ کے ساتھ رابطہ بنا رہے۔ ناظرین، سورج جو ہمارے اس سولر سسٹم کا سینٹر آف گریوٹی ہے اور زمین پر توانائی کا سب سے بڑا سورس ہے، سورج سے ریلیٹڈ یہ انفارمیشن آپ کو حیران کر دے گی۔ سورج میں 92% ہائیڈروجن اور 8% ہیلیم ہوتی ہے۔ اگر آپ پیریوڈک ٹیبل کو دیکھیں تو اس میں ہائیڈروجن کا سمبل H ہے، جسے عربک میں ہا کہتے ہیں۔ اب قرآن پاک کی طرف اگر چلیں تو قرآن پاک میں شمس کے نام سے ایک مکمل سورت ہے، اور شمس کا مطلب سورج ہے۔ سورہ شمس کی ٹوٹل آیات 15 ہیں، اور اس سورت کی ہر آیت لفظ ہا پر ختم ہوتی ہے۔ اس سورت کو قرآن پاک میں 91 نمبر پر رکھا گیا ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سائنس اس چیز کو قبول کرتی ہے کہ سورج اس یونیورس کے بننے کے 91 ملین ایئرز کے بعد ہی بنا تھا۔ اگر آپ سورج اور زمین کے درمیان کم ترین فاصلہ دیکھیں تو وہ بھی 91.4 مائلز ہے۔ قرآن پاک کا یہ نیمرولوجیکل آرڈر آپ کو مزید حیران کر دے گا کہ زمین اور سورج کا ایوریج ڈسٹینس 15 کروڑ کلومیٹر ہے، اور اگر اس سورت کی آیات پر غور کریں تو وہ بھی 15 ہی ہیں۔ اور مزید حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سورج کی کور کا ٹمپریچر بھی 15 ملین سیلسیس ہی ہے، جتنی اس سورت کی آیات ہیں۔ دوبارہ سپیس کی بات کریں تو جب ایسٹروناٹ سپیس میں جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں کی ویژن بلر ہو جاتی ہے، یعنی وہ زیادہ گہرائی میں نہیں دیکھ پاتے، اور وہاں ان کی نظر زیادہ ڈیپتھ پرسیو نہیں کر سکتی، کیونکہ ایسٹروناٹس کی آنکھوں کو سپیس افیکٹ کرتی ہے۔ سائنس نے یہ بات آج دریافت کی ہے، جبکہ قرآن پاک میں اس کا بیان 1400 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 14 اور 15 پر غور کریں تو اللہ فرماتا ہے، اور اگر ہم ان کے لیے آسمان
आसमान में कोई दरवाज़ा खोल देते ताकि दिन के वक्त इसमें चढ़ जाते, फिर भी वो यही कहते कि हमारी निगाहों को बंद कर दिया गया है, बल्कि हम ऐसी कौम हैं जिन पर जादू किया हो। 1400 साल पहले विजन का स्पेस में ब्लर होना सिर्फ वही बता सकता है जिसने ये कायनात बनाई हो। नाजरीन, साइंटिस्ट ये बात आज दरियाफ्त कर रहे हैं कि मरने के बाद इंसान की हड्डियां पत्थर और लोहे में तब्दील हो सकती हैं। इंसानी हड्डियों का पत्थर या लोहे में तब्दील होना आज से 1400 साल पहले कुरान पाक में लिखा जा चुका है। सूरह बनी इसराइल की आयत 49 और 50 में अल्लाह फरमाता है, और उन्होंने कहा, क्या जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या वाकई हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा? तुम फरमा दो कि पत्थर हो जाओ या लोहा। आज से 1400 साल पहले ये इन्फॉर्मेशन वही दे सकता है जो इस कायनात का खालिक अकबर है। नाजरीन, ये इन्फॉर्मेशन आपको मजीद हैरान करने वाली है। क्या आप जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से उनका सीना टाइट हो जाता है और उन्हें सांस लेने में मुश्किल पैदा होती है और वो सीने में जकड़न महसूस करते हैं। ये फैक्ट भी साइंस ने आज दरियाफ्त किया है, जबकि कुरान पाक ने इस फैक्ट को 1400 साल पहले लिखा है। सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 125 पर गौर करें, जिसमें अल्लाह फरमाता है, और जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है तो इसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराह करना चाहता है इसका सीना तंग, बहुत ही तंग कर देता है, गोया कि वो जबरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा हो। स्पेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक और बात जान लें कि साइंस ने 17वीं सेंचुरी में एक रोसेट नेब्यूला दरियाफ्त किया था, जिसका जिक्र कुरान पाक में 1400 साल पहले से मौजूद है। इस नेब्यूला की बनावट और कलर बिल्कुल गुलाब की तरह है। कुरान पाक की सूरह अल-रहमान आयत नंबर 37 की तरफ चलते हैं, जिसमें अल्लाह फरमाता है, फिर जब आसमान फट जाएगा तो गुलाब के फूल जैसा सुर्ख हो जाएगा, जैसे सुर्ख चमड़ा। कुरान पाक जिसमें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का बयान है। ये कुरान पाक 1400 साल पहले इंसानों और जानवरों में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद भी बता चुका है। इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कुरान पाक की सूरह अल-ज़लज़ला पर गौर करें और शुरू से इसके लेटर्स को काउंट करना शुरू करें तो 46वां लेटर लफ्ज़ इंसान पर आएगा, और इंसान में क्रोमोसोम्स की तादाद भी 46 ही है। नाजरीन, बंदर में क्रोमोसोम्स की तादाद 48 है, और सूरह बकरा की इस आयत को अगर गौर से देखें और इसके लेटर्स को काउंट करें तो लफ्ज़ किरादत तक 48 लेटर्स बनते हैं, और किरादत बंदर को कहते हैं, और बंदर में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद भी 48 ही है। शहद की मक्खी में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, और सूरह नहल की इस आयत को अगर गौर से देखें और इसके लेटर्स को काउंट करें तो 16 लेटर्स लफ्ज़ अल-नहल पर कंप्लीट होते हैं, और नहल अरबी में शहद की मक्खी को कहा जाता है, और शहद की मक्खी के अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद भी 16 ही है। नाजरीन, घोड़े में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद 64 है, और सूरह अल-इमरान की इस आयत के लेटर्स को अगर काउंट किया जाए तो 64वां लेटर लफ्ज़ वल खेल पर कंप्लीट होता है, और खेल अरबी में घोड़े को कहते हैं, और घोड़े में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद भी 64 ही है। नाजरीन, गधे में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद 62 है, और सूरह जुमा की इस आयत में लफ्ज़ गधे के बाद 62 लेटर्स ही हैं, जो गधे में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद के एन बराबर हैं। ऊंट में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद 74 है। इस आयत में जब हम लफ्ज़ जमल पर पहुंचते हैं तो 74 लेटर्स मुकम्मल होते हैं, जो कि ऊंट में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद के एन बराबर हैं। नाजरीन, 1400 साल पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन खालिक हकीकी के अलावा कोई नहीं दे सकता था। ये सारी इन्फॉर्मेशन कुरान पाक का एक छोटा सा टुकड़ा है। नाजरीन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज से 1400 साल पहले देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, जब ना तो साइंस इतनी एडवांस थी और ना टेक्नोलॉजी इतने अरूज पर थी। इंसान अल्लाह को उसकी निशानियों के जरिए पहचानता है, और अल्लाह ने कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में अपनी निशानियाँ रखी हैं। कायनात का जर्रा जर्रा उसके होने की खबर दे रहा है। इंसान को ज़रूरत है तो सिर्फ गौर व फिक्र करने की, इसीलिए गौर व फिक्र करने वाले के दर्जात भी अल्लाह ने बुलंद फरमाए हैं। इस कुरान में अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे पैटर्न्स और राज रख कर भेजे हैं कि जिन्हें इंसान जान ले तो कुर्ब इलाही तक पहुंच जाता है। इस किताब में ऐसे ऐसे इसरार और रमूज हैं कि इंसान खुद की पहचान कर लेता है, और जो खुद को पहचान जाता है वही अपने रब को पहचान जाता है। कुरान पाक के ऐसे मजीद पैटर्न्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये जो स्क्रीन पे आप रंगीले पहाड़ देख रहे हो, ये चाइना और पेरू में पाए जाते हैं। इन पहाड़ों का जिक्र हमें कुरान में मिलता है। सूरह फतिर आयत नंबर 27, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने ना देखा अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा और इससे मुख्तलिफ रंगों वाले फल निकाले, और पहाड़ों में सफेद और सुर्ख रंग वाले रास्ते हैं। इसमें कुछ मुख्तलिफ रंग वाले पहाड़ हैं और कुछ बहुत ही काले हैं। कमाल की बात तो यह है, हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में पैदा हुए, जहाँ पे किसी को ये रंगीले पहाड़ों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, और ना ही दूर दूर तक रंगीले पहाड़ कहीं दिखते थे। तो आखिर हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बारे में कैसे पता चला? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। क्या अभी भी लोग कुरान की सच्चाई का इनकार करेंगे? दिस वाज द हिडन सीक्रेट नंबर 1। अभी बात करते हैं हिडन सीक्रेट नंबर 2 की। आपने समंदर की लहरों को तो देखा होगा, क्या आपको ये पता है कि समंदर के अंदर भी लहरें होती हैं जिनको इंटरनल वेव्स कहा जाता है। जब समंदर में पानी एक लेयर में मूव करता है तो किसी रुकावट की वजह से एक डिस्टर्बेंस पैदा होती है, जिसकी वजह से समंदर में वेव्स बनती हैं। इसको 1893 में डिस्कवर किया गया था, 1893। लेकिन कुरान में हमेशा की तरह पहले ही इस चीज को बता दिया गया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है सूरह अन-नूर आयत नंबर 40 में, या जैसे किसी गहरे समंदर में तारीकियां हों जिसको ऊपर से एक लहर ने
ढांप लिया हो, इस एक लहर पे एक और लहर हो, इस दूसरी लहर पर बादल हो, और कौन सी अल्लाह की नेमतों को ठुकराओगे। सीक्रेट नंबर 3, कुरान में एम्ब्रियोलॉजी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ एक्सप्लेन की गई है। यहाँ पे बच्चा पैदा होने का पूरा एग्जैक्ट प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह से स्पर्म बॉडी में एंटर होता है और वहाँ से किस तरह से बच्चा पैदा होता है। जहाँ तक कि साइंस ने 1959 में एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कवर किया था, उससे पहले तक किसी को ये भी पता नहीं था कि बॉडी में स्पर्म किन स्टेजेस तक गुजर के जाता है और फिर बच्चा किस तरह से वजूद में आता है और किस तरह बच्चा अपनी शेप लेता है और किस तरह से पैदा होता है। सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 14, इसमें अल्लाह ताला ने परफेक्ट ऑर्डर के साथ एक्सप्लेन किया है। अल्लाह फरमाता है, फिर इसको एक मजबूत ठहराव में पानी की बूंद बनाया, फिर हमने इस पानी की बूंद को जमा हुआ खून बना दिया, फिर इस जमे हुए खून को गोश्त की बोटी बना दी, फिर गोश्त की बोटी को हड्डियां बना दिया, फिर हमने इस हड्डियों को गोश्त पहनाया, फिर हमने इसको दूसरी सूरत बना लिया जो बड़ी बरकत वाला है, जो अल्लाह सबसे बेहतर बनाने वाला है। आज से पहले 1400 साल पहले ये सारी चीजें बताना एक इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी इतने हाई लेवल टेक्नोलॉजी वाले इंस्ट्रूमेंट्स जो 1400 साल पहले अवेलेबल नहीं थे। वो अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है। और कौन सी नेमतों को ठुकराओगे। डॉक्टर कीथ मोर जो एम्ब्रियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, इनको सऊदी अरेबिया में इनवाइट किया गया, एक कॉलेज में, अब्दुल अजीज़ कॉलेज में इनको वहाँ पे बुलाया गया और उन्हें ये सूरह अल मोमिनून की जो ये आयत मैंने आपको पढ़ के बताई, इसको एग्जामिन करने के लिए उनको बोला गया कि इसको एग्जामिन करो, इसको वेरीफाई करो कि जो इसमें बताया गया है आपकी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, क्या ये सही है। जैसे ही उन्होंने इन आयत को पढ़ा वो हैरान रह गए और इसके बाद उन्होंने कुरान के बारे में ये कहा, सुनिए। have revealed a system for classifying human embryos that is amazing since it was recorded in the 7th century AD. जैसे कि आपने देखा, आपने सुना कि डॉक्टर कीथ इस मौजज़े को सुन के, इस पढ़ के हैरान रह गए कि 7th सेंचुरी में 1400 साल पहले ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। सीक्रेट नंबर 4, ये जो आप अभी सामने देख रहे हो इसको डेथ वैली कहा जाता है, और जो ये आप पत्थर देख रहे हो व्हाइट कलर के, इनका 320 पाउंड तक का वेट होता है। कमाल की बात ये है कि ये जो पत्थर है खुद से मूव करते हैं, 320 पाउंड का पत्थर खुद से मूव करता है, माशाल्लाह तबारकल्लाह। बहुत सालों तक साइंटिस्ट ने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया, परेशान रहे कि भाई ये पत्थर मूव कैसे करते हैं। आखिरकार 2014 में साइंटिस्ट ने टाइम लैप्स कैमरा लगा के उस पत्थरों की मूवमेंट का उन्होंने कैप्चर किया उसको। जब साइंटिस्ट ने इस पत्थर को कैप्चर किया तो उन्हें पता चला सर्दियों में जो बारिश होती है, बारिश का जो पानी है कड़क सर्दियों में जब वो जम जाता है ठंडी में, और अगले दिन बर्फ काफी मोटी हो जाती है, फिर हल्की सी हवा चलने से ये बर्फ तालाब में पत्थरों के पीछे जमा हो जाती है। जैसे जैसे बर्फ जमा होती है वैसे वैसे ये पत्थर जो है मूव करते हैं। और कुरान में अल्लाह ताला इसके बारे में क्या फरमाता है वो आप सुनिए। सूरह अल बकरा आयत नंबर 74, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, फिर वो पत्थरों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा सख्त हैं, और पत्थरों में से कुछ वो हैं जिनसे नदियां बह निकलती हैं, और कुछ वो हैं कि जब फट जाते हैं उनसे पानी निकलता है, और कुछ वो हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। अल्लाह तुम्हारे अमाल से हरगिज बेखबर नहीं। यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक हैरान कुन बात कही है कि कुछ पत्थर ऐसे हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। यहाँ पे पहाड़ों जैसे चट्टान वाले पत्थरों की बात नहीं हो रही जो हवा की वजह से या फिर वो लैंडस्लाइड की वजह से या फिर धरती भूकंप पानी की वजह से गिरते हैं, उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे मोस्ट लाइटली इन्हीं पत्थरों की बात हो रही है जो ये डेथ वैली वाले पत्थर हैं जो अपने आप मूव करते हैं, 320 पाउंड के पत्थर। सीक्रेट नंबर 5, सूरह अल बकरा आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला फरमाता है, यहाँ पे अल्लाह ताला का कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला मच्छर हो या मच्छर से भी ज्यादा छोटी कोई चीज हो उसकी भी मिसाल दे सकता है, लोगों को समझाने के लिए, हिदायत देने के लिए। साइंस ने ये डिस्कवर किया है कि मच्छर के जो पर हैं, एक सेकंड में 300 से लेके 600 बार वो पर को फड़फड़ाता है। सोचो आप, मच्छर में एक डिटेक्शन होता है कि जिसकी वजह से वो जानवर हो या इंसान हो दूर से ही उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, उनको महसूस होने लग जाता है। ये इंटरनल उनका एक सिस्टम है। इसी तरह इनमें हीट और विजुअल सेंसर्स भी होते हैं, माशाल्लाह तबारकल्लाह सुभान अल्लाह, जो इन्हें अपना शिकार ढूंढने में मदद करते हैं। हम देखते हैं ना कि कार्स में 360 डिग्री कैमराज आए हुए हैं, है ना, 360 डिग्री दूसरे कैमराज भी होते हैं जो व्लॉगर्स लेके घूमते हैं। मच्छर की आंख में ये चीज डिस्कवर हुई है, उसकी आंख एक 360 डिग्री विजुअल देख सकती है और रात को भी आसानी से देख सकती है। आप सोचिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और कमाल की बात यह है कि मच्छर दुनिया के डेडली एनिमल में से एक है, डेडली मखलूक है, क्योंकि दुनिया में हर साल 1 मिलियन से ज्यादा लोग मच्छर की वजह से मरते हैं। इसी वजह से इस आयत में लिखा है कि जो मोमिन है वो यकीन करते हैं और जो काफिर हैं वो ये कहते हैं कि इस मिसाल से खुदा की मुराद ही क्या है। ये जो मच्छर की मिसाल दी अल्लाह ने, इसके जरिए अल्लाह ताला बहुतों को गुमराह करता है और हिदायत बख्शता है और नाफरमानों को ही गुमराह करता है। आप देखिए, इतनी छोटी सी मखलूक में अल्लाह ताला ने निशानियां रखी हैं कि अल्लाह ताला एक छोटे से मच्छर की मिसाल दे रहा है। अभी सीक्रेट नंबर 6 की बात करते हैं। सूरह अल नहल आयत नंबर 68 और 69, अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी और पहाड़ों में, दरख्तों में और छतों में घर बनाओ, फिर हर किस्म के फलों में से खाओ और फिर अपने रब के बनाए हुए नर्म और आसान रास्तों पे चलती रहो। इसकी पीठ से एक पीने की रंग बिरंगी चीज निकलती है जिसमें अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए शिफा रखी है। बेशक इसमें गौर करने वालों के लिए निशानी है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे अल्लाह ताला का कहना है कि शहद में लोगों के लिए शिफा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और साइंटिस्ट ने शहद के बारे में रिसर्च किया है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और कहीं और इसमें जो पदार्थ होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं,
आप ये यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सारी चीजें होती हैं शहद में। एंटी बैक्टीरिया, एंटी डायबिटिक और नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टिव इफेक्ट भी पाए जाते हैं। इसी वजह से शहद जो है बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जैसे कि अल्लाह ने फरमाया इसमें लोगों के लिए शिफा है। और आगे देखिए कुरान में कहीं जगह पे ये चीज लिखी हुई है कि गौर करने वालों के लिए निशानियां हैं। गौर करने वालों के लिए, क्या हम गौर करते हैं? हमें गौर करना चाहिए अल्लाह ताला की निशानियों पे। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। सीक्रेट नंबर 7, जब भी हमारी बॉडी पे कट लगता है, ऑब्वियसली हर एक इंसान को पेन होता है ना? कैसे होता है पर वो पेन? जब भी कोई कट लगता है, कोई भी जख्म होता है हमारी बॉडी पे, तो हमारी बॉडी के जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, और जब ब्रेन को पता चलता है तो ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि तुम्हें दर्द हो रहा है, फिर हमें दर्द होता है। पर जो ये बॉडी में पेन रिसेप्टर्स होते हैं, इसके बारे में रिसर्च कब हुई? चार्ल्स स्कॉट शेरिंगटन 1906 में इस बंदे ने पेन रिसेप्टर्स के बारे में रिसर्च किया था, ठीक है? उसने इन्वेंशन किया इस चीज के बारे में, उसको पता चला पहली बार 1906 में। पर कुरान में सदियों पहले से लिखा हुआ है। सूरह अन-निसा आयत नंबर 56, बेशक उन लोगों ने जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया, अनकरीब हम इनको आग में दाखिल करेंगे, और जब इनकी खालें पूरी जल जाएंगी तो इनको हम दूसरी खालें पहनाएंगे ताकि ये अजाब का मजा चख लें। बेशक अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है, सुभान अल्लाह। सीक्रेट नंबर 8, 4 अक्टूबर 1957 सोवियत यूनियन ने पहला स्पेस मिशन लॉन्च किया, और यहीं से स्पेस एक्सप्लोरेशन का सफर शुरू हुआ, जिसके बाद इंसानों ने एक के बाद एक स्पेस मिशन किए। 19वीं सेंचुरी में ही इंसानों ने ये चीज डिस्कवर की थी कि हम स्पेस में भी जा सकते हैं। सूरह अर-रहमान आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिनों और इंसानों की जमात, अगर तुम आसमानों और जमीनों के दायरे से बाहर निकल सकते हो तो ऐसा करो, लेकिन तुम ये हमारे अख्तियार के बगैर नहीं कर सकते। इस आयत से ये पता चलता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान इस दुनिया से, इस धरती से, इस अर्थ से स्पेस में जाएगा, लेकिन वो अल्लाह ताला की हदूद को पार नहीं कर सकता, स्पेस की बाउंड्रीज को पार नहीं कर सकता, चाहे जितना मर्जी इंसान तरक्की कर ले। पर जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह चाहेगा तो ही होगा ये चीज। आज ये रियलिटी है कि इंसानों ने स्पेस का सिर्फ 4 to 5% ही डिस्कवर किया है, उससे ज्यादा नहीं। अराउंड 95% ऑफ स्पेस अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया इंसानों ने, अभी तक सिर्फ 5% हुआ है अभी के हालात के मुताबिक। तो इंसानों के लिए पूरी स्पेस को एक्सप्लोर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सीक्रेट नंबर 9, कुरान की अरबी इतनी ज्यादा यूनिक है कि आज की जो मॉडर्न अरबी है वो भी इसके आसपास नहीं आ सकती। कुरान में कुछ ऐसे अल्फाज मिलते हैं हमें अरबी में जो स्टैंडर्ड अरबी जो है वहाँ पे लिंग्विस्टिक में पाए ही नहीं जाते वो वर्ड। इसमें कुछ ऐसे सिंबल्स यूज किए गए हैं जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और करेक्ट सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, जैसे सेंटेंस के दरमियान जो पॉज आते हैं। कुरान का जो लिंग्विस्टिक है, जो उसका राइटिंग स्टाइल है, वो भी नॉर्मल अरबी से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। इसी वजह से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान को सुनते थे जब काफिर, उस वक्त के काफिर, नॉन मुस्लिम्स, नॉन बिलीवर्स, तो वो दंग रह जाते थे कि उन्हें पता था, उनके दिल के अंदर चाहे वो माने या ना माने, उन्हें ये चीज़ का विश्वास था कि इंसान ने इस वर्ड्स को नहीं लिखा। उन्हें ये चीज़ पता थी कि ये नॉर्मल इंसान के अल्फाज नहीं हो सकते, उस अल्लाह के अल्फाज ही हो सकते हैं। इसीलिए कुरान बाक़यामत तक पूरी दुनिया को चैलेंज दे रहा है। सूरह अल-इसरा आयत नंबर 88 में अल्लाह ताला फरमाता है कि पूरी मैनकाइंड, पूरे सारे इंसान मिलकर भी कुरान जैसी किताब प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, और वक्त क़यामत तक है सबको। और ये चैलेंज सबके लिए ओपन चैलेंज है, उस वक्त के लोगों के लिए भी और आज के लोगों के लिए भी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। व्यूअर्स, इसी तरह की इम्पोर्टेंट और इस्लामिक इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए सुन्नी इस्लामिक फैक्ट्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी सभी वीडियोज़ मिलती रहे।